کرو, موچھیں بنایا کرو, منہ زیر ناف بغل کے ناف بنایا کرو, اچھے سے رہو, پاک و صاف رہو, اچھے کپڑے پہنو. گندے مندے کپڑے پہن کر, ہرے ہرے کپڑے پہن کر, پیلے پیلے کپڑے پہن کر, موٹی موٹی مالا ڈال کر, 10 انگوٹھی پہن کر تو مرشد ہے. اگر تو کیا خاص مرشد ہے, خدا کی قسم اگر تو بخشا جائے تو یہ بڑی بات ہے. مرشد ایسا نہیں ہوتا ہے. مرشد دیکھنا چاہتے ہو حضرت علی کی بارگاہ, حضرت علی فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا ولی کیسا ہوتا ہے, فرماتے ہیں آنکھ سر دو, رنگ سر دو, چشم تر. کسی نے علی سے پوچھا ولی کیسا ہوتا ہے, سنو ولیوں کے سردار علی کہتے ہیں آنکھ سر دو, رنگ سر دو, چشم تر. خدا کی قسم جو خوف الہی سے سوکھ کر کاٹا ہو گیا ہو, اللہ کے خوف سے جس کی آنکھیں بہتی ہو, جو پیلا پڑ گیا ہو جہنم کے خوف سے روتے روتے, ایسا شخص جہاں بھی دکھے سمجھ جاؤ یہ اللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. فلائٹ میں سفر کرنا, امیر مریدوں کے یہاں رکنا, غریبوں کو بھاؤ نہیں دینا, غریبوں کو قریب نہیں آنے دینا, اونچی اونچی ہوٹلوں میں ٹھہرنا, رنگ برنگی کپڑے پہننا, الٹے سیدھے بال رکھنا, چٹیاں رکھنا, کڑا پہننا, ہجڑوں جیسی شکل بنانا, ٹھکوں جیسے بن کر گھومنا, یہ پیر کامل ہے. خدا کی قسم یہ تو مسلمان ہوگا تو بڑی بات ہے, ایسے لوگ پیر نہیں ہوتے. آؤ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں, جن کا ہم نام لیتے ہیں, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, اور خدا کی قسم ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی ہیں. کوفہ میں ایک مرتبہ شور ہوا کوفہ میں. اللہ کے ولی آئے, اللہ کے ولی آئے. تمام لوگوں نے امام اعظم تک کہا, بات پہنچا. امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی ان کی زیارت کو چلیں گے, اللہ کے ولی ہے زیارت کو چلیں گے. لوگوں نے کہا فلاں مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں اللہ کے ولی. امام اعظم آئے, باہر کھڑے رہے. کسی نے کہا حضور وہ حاجت کے لیے گئے ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں آتے. امام صاحب نے فرمایا میں یہی انتظار کرتا ہوں, ان کے آنے کے بعد چلیں گے. وہ اللہ کے ولی جو بغداد میں مشہور تھے اپنی حاجت سے فارغ ہو کر آئے, مسجد میں چلے گئے. امام اعظم نے فرمایا واپس چلو. لوگوں نے کہا کیوں, لوگوں نے کہا کیوں. امام اعظم فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم, یہ مسجد میں الٹا پیر رکھ رہا ہے, اسے مسجد میں جانے کا ڈھنگ نہیں معلوم. وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امام اعظم ہے جنہوں نے ولی کو ایک نگاہ میں پہچان لیا ولی ہے کہ نہیں ہے. آج تم کس بات پر مرتے ہو؟ لمبی لمبی زلفوں پہ, رنگین تباہ پر, آگا پر, مریدوں کی جھرمٹ پر. ان کے اتنے مرید ہیں, ان کے اتنے لاکھ مرید ہیں, ان کا بڑا بڑا سلسلہ ہے. ارے ان میں کچھ نہیں, ان سے پہلے جو بزرگ تھے ان میں باتیں تھی. ان سب مرشدوں کو چھوڑو, ان سب پیروں کو چھوڑو. یہ لوگ خدا کی قسم تمہیں تباہ و برباد کر رہے. اندھی عقیدت مت رکھو, شریعت کا عینت لگاؤ. جو شریعت کے دائرے میں ہے اسے مان لو. جو 4 انگوٹھی پہنے, سرکار دو عالم نے 1 سے 60 انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. مرد کو لوہا, تانبا, پیتل پہننے سے منع فرمایا. کیسی کیسی رسمیں آ گئی, اولاد نہیں ہو رہی ہے. 16 سیدوں کا روزہ. کون تھے 16 سید معلوم ہے؟ شیعوں کے امام تھے. روزہ اللہ کے لیے, حج اللہ کے لیے, نماز اللہ کے لیے, طواف اللہ کے لیے. جو عبادت اللہ کے لیے اسے اللہ کے ساتھ خاص رکھو. 10 بیوی کی کہانی. کون سی 10 بیوی؟ شیعوں کی 10 بیویاں. کوئی نہیں ہے 10 بیوی. بیوی سگر اماں کی کہانی, لکڑہارے کی بیوی کی کہانی. کیسی کیسی دقیانوں سے رسمیں نکال دی. اولاد ہو گئی تو فلاں کے نام کی چوٹی رکھوں گا, فلاں کے نام کا کڑا پہناؤں گا. اولاد ہو گئی تو 5 سال تک بھیک مانگ کے کھلاؤں گا, 5 سال تک ہرے ہرے کپڑے میں رکھوں گا. یہ ساری جہالت کی رسمیں ہیں. شریعت میں رشوت کیسی ہوتی ہے, شریعت میں نظر کیسی ہوتی ہے. اولاد ہو گئی تو اتنی رکعت نماز پڑھوں گا, خانے کعبہ کا طواف کروں گا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ نظر مانو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 لوگ ایسے ہیں جن کا جنت انتظار کرتا ہے. کیا بات ہے. 4 لوگ. بھائی مولانا صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ کافی تقریر ہو گئی, 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی. ویسے صاحب 1 گھنٹہ سنیں گے نا آپ لوگ؟ نہیں آپ تو سنیں گے. سبحان اللہ کہیے ایک بار, زور سے کرو, ارے زور سے کرو, اور زور سے کہو. میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, مناظر اہل سنت, مناظر
हमारे इमाम अहले सुन्नत ने रद्द किया है। हम बिदअत को फटकने नहीं देंगे, इस्लाम के नाम पर जारी नोट चलने नहीं देंगे, जैसे वहाबी देवबंदियों की दीन में कमी नहीं चलने देंगे, वैसे ही अहले बिदअत की बिदअतों को फटकने नहीं देंगे। ये सारी जो रसूमात लोगों ने निकाल रखी है, खुदा की कसम इसका इस्लाम से क्या लेना देना। कैसी कैसी मन्नत मांगते हैं। नबी फरमाते हैं 4 लोग ऐसे हैं जिनके आने की तमन्ना खुद जन्नत का है कि मेरे अंदर 4 लोग आए। कौन? अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहले नंबर पे उतइमुल जीरान, भूखों को खाना खिलाओ। तुम किसी का पेट भरो, खुदा की कसम उसकी दुआ अर्शे इलाही को हिला देगी, तुम्हारे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। और दुआ यरद्दुल बला, दुआ बला को टालती है, सदका बला को टालता है। लोग सड़कों पर सोने पर मजबूर है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनकी बच्चियां उठ नहीं रही है, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो आला तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं है, कितने घर ऐसे हैं जहां वाकई की जिंदगी गुजारी जा रही है। तुम पीरों का जेब भरते हो, तुम पीरों को खिला खिला के मोटा कर रहे हो। पीर अपनी 7 पुश्तों के खाने का इंतजाम कर रहा है। पीरी मुरीदी का धंधा बंद करो। पीर लोग कौन? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर जैसी सिटी में आकर पहले गुंडों को, मवालियों को मुरीद करेंगे, पहले ऐसे लोगों को मुरीद करेंगे, बाद में मौलाना ने 3 पास किया तो धो डालो। ये बड़ी बड़ी सीटियां है, ऐसा हो रहा है। बड़ी बड़ी सीटियां पीरों की चरागाह है। क्या है? चरागाह है पीरों की, बड़ी बड़ी सीट। गुंडों के यहाँ ठहरेंगे, हाँ, नेताओं के यहाँ ठहरेंगे और उनके जरिए आलिमों पे फौज जमाएंगे, जो चाहेंगे चलाएंगे। पीरी मुरीदी फर्ज है, वाजिब है। इस जमाने में बैत सिर्फ बरकत के लिए होते हैं। किस लिए होते हैं? आला हजरत फरमाते हैं जिसे कामिल पीर न मिले, सबसे बड़े पीर, पीरों के पीर, दुनिया व आखिरत का सहारा हमारे आका वो मौला है, सबसे बड़े पीर वो है। कुरान है, सुन्नत है, मनहजे सहाबा है, मनहजे असलाफ है, बुजुर्गों की जिंदगियां हमारे सामने है। और फिर वो पीरी क्या जो लंदन में, अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में एक बार देख के मुरीद हो गए तो बाद में मिलना नसीब नहीं हो रहा। पीर बनाते क्यों है? इसलिए कि उससे कुछ आप सीखो। और तुम तो जब जाते हो उसकी जेबें गर्म करते हो, और जेबें गर्म करने के लिए कैसी कैसी चालें चलते यार, कैसी कैसी मकरू चालें चलते हैं। हकीकत का वाकया बता रहा हूँ, झारखंड एक इलाका है, वहां पर एक पीर साहब आते थे, इतने बड़े मक्कार, लेकिन दिखने में ऐसे जैसे बिल्कुल अभी अभी आसमान से उतरे। ये पगड़ा, पगड़ी, अमामा, निगाहें नीचे, सुन्नत आता वगैरह। पीर साहब आए तो देहात के लोग बड़ी मोहब्बत से आओ भगत करके, नाराए तकबीर और रिसालत के साथ। बहुत गरीब होते हैं, बिहार बंगाल के लोग बड़े मोहब्बती होते हैं। बिहारियों के बारे में लोग खामुखा की अफवाहें उड़ाते हैं, मैं जाता हूँ अक्सर। तो झारखंड के गांव में लोगों ने एक मकान को, मिट्टी के मकान को लीपा पोता, साफ किया, हजरत का बिस्तर लगाया। अब सारे गांव के छोटे बड़े मिलकर हजरत को रूम में छोड़े। अब हजरत ने कहा ऐसा है आप लोग बाहर तशरीफ ले जाएं, मैं जरा जिक्र अस्कार करने जा रहा। तो लोगों ने कहा अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत पीर की। बाहर निकलकर बाहर बैठे रहे, गए नहीं कि कब हुजूर का दरवाजा खुलेगा, सरकार का दीदार होगा। अब सरकार भी बड़े पहुंची हुई चीज थी। सरकार ने अंदर से ऐसे शक्कर की पुड़िया निकाली। रूम तो साफ सुथरा था ना, लीपा पोता हुआ साफ रूम था। शक्कर की पुड़िया निकाल के शक्कर फैला दी। अब थोड़ी देर में चींटी चींटा, ये बड़े बड़े काले लाल चींटे सब वहां जमा हो गए। अब उसके बाद पीर साहब ने दरवाजा खोला, कभी तक यही बैठे हुए हो? तुम लोग क्या समझते हो तुम ही मेरे मुरीद हो? आओ देखो, ये जिन्नात इस इलाके के चींटी बनकर आए हुए हैं। इस इलाके के जिन्नात की जियारत को चींटी बनकर आए। तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ तुम्हारा पीर हूँ? लोगों ने देखा, अरे बाप रे बाप, अभी तक तो कुछ नहीं था और इतना चींटी वगैरह आ गया। वाकई में पीर साहब बहुत पहुंचे हुए। अब दूसरे पीर साहब भी आते थे ना, उनके एजेंटों ने बताया हुजूर उनका मामला आगे बढ़ गया, पीरियत चल गई उनकी, जिन्नाती पीर मशहूर हो गए, वो आप भी कुछ करो। अच्छा ये बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। पीरों की भी बड़ी कंपटीशन होती है, सारा झगड़ा पीरी मुरीदी का, सारा झगड़ा पीरी मुरीदी का। इसीलिए उन्हें सुला कुल्ली, अला कुल्ली, शिफा कुल्ली, क्या क्या कुल्ली, क्या क्या कुल्ली, खुदा बचा। बहरहाल अब ये पीर साहब ने देखा इनकी चल गई, तो इन्होंने कहा एक काम करो, रेडियम समझते हैं आप लोग, रेडियम? उन्होंने इत्र में रेडियम डाल दिया। डालने के बाद दोनों हाथ को ऐसे चेहरे पे मला और रात के वक्त जाकर जंगल में बैठ गए।
اور کہا گاؤں والوں کو لاؤ اور بتاؤ کہ یہ ہے دیکھو شخصیت. اب گاؤں والے آئے دیکھا ارے باپ ری باپ چمکتا پیر، وہ جناتی پیر تھا، یہ چمک رات میں چمک رہا، یہ تو بہت زیادہ پہنچا ہوا. ان کی بھی گاڑی چل گئی، ان کی بھی گاڑی چل گئی. تو آج کے ڈیٹ میں تقریباً پیر کیا ہے؟ لے نگم ہے. کیا ہے؟ دے نگم کا آپشن نہیں ادھر. پیر صاحب سے ارے پیر لوگوں کے کیا مزے رہتے ہیں یار، صحیح میں بہت مزہ ہے. پیر آج کی ڈیٹ میں جو پیر بن گیا نا، ٹینشن ہی نہیں اسے. میرے سامنے ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، اچھا یہ آئی فون ہے؟ اچھا آئی فون ہے جی حضور. اس نے سم نکال کے دے دیا، لے لو. کیسے کیسے بھکت لوگ ہیں یار. اور مولوی چیخ چیخ کے مرے، لیکن دیکھنا نظرانہ کیسا رہے گا. قوالوں کا پیروں کا بڑا مزہ ہے. بہرحال یہ سب کمیٹی والوں سن لو، مولانا چیخ چیخ کے مر جائے. بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا، ایک پیر صاحب تھے، ان کے پتر صاحب، پیروں کے بچوں کے بھی بڑے مزے ہوتے نا، اپنے ابا کے مریدوں کے ساتھ گھومنے گئے. اب گھومنے گئے تو اتفاق سے ندی کا راستہ تھا. اب حضور کا پیر پھسل گیا، سرکار کا وجود نامسعود پانی میں آ گیا. تو پانی میں آ گیا تو ایک مرید نے کہا حضور دیجیے، تو حضرت نہیں دے رہے، ڈوب رہے. تجھے وہ لگتا ہے کہاں دیجیے، نہیں دے رہے، ڈوب رہے ہو. ایک مزاج شناس تھا، خدمت کا، بارگاہ کا بڑا پرانا خادم تھا. اس نے کہا سرکار لیجیے، تو فوراً لیا اور آ گئے. لوگ بولے پیر صاحب ہمارے سے کیا غلطی ہوئی؟ بولے کم بختو، تم نے کہا دیجیے، ہم کو دینا نہیں آتا. اس نے کہا لیجیے، لینا ہمارا کام ہے. کیا بات ہے. پھنسے، خدا کی قسم مت پھنسو. سنی مسلمانوں مذاق مت بنو، دین کا مذاق مت بناؤ. آج یار ہم لوگ وہابی دیوبندیوں سے لڑتے تھک جاتا ہوں میں. مجھے اتنے فوٹو وہابی بھیجتے ہیں، وہ پاکستان میں کون سا ننگا پیر ہے، لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں. ایک اتنا ڈھیبڑا پیر ہے، بولے دیکھو اسلام پھیل رہا ہے، ایسا لکھ کر اوپر بھیج دیے. ایسے مذاق اڑاتے. تازیہ داری جیسی بدعات، مزارات پہ جو بدعات ہوتی، مزاروں پہ کم بدعات ہوتی. جیسا طریقہ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ نہایت ادب والا صاحب مزار. سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا کہ مزار پر جب تک ایک چادر پرانی نہ ہو دوسری نہ ڈالی جائے. یا لوگوں کو پہننے کو کپڑا نہیں ہے، ٹھنڈ سے لوگ روڈ پہ سونے سے مجبور ہے، اور تم مزاروں پہ کیسی چادر، 20 ہزار کی چادر. ہمارے یہاں ایک صاحب ہے اجمیر شریف، ہر مہینہ جاتے ہیں چھٹی میں. اب ایسا بیان کرے تو لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ مولانا پکوڑے ہے کیا جی؟ ابے ہم کو پکوڑا بولنے والوں، تم کون سے سموسے سننی ہو؟ تمہیں سننی ہے حلوہ کھانے والے، اور ہم سنیت کے لیے جان دینے والے، ہمیں پکوڑے. حق بولتا ہوں میں، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا. ملک خدا تنگ نیز بائے مورا لنگ نیز. اب ہمارے یہاں ایک صاحب اجمیر شریف جاتے تو جانے کے بعد 20 ہزار کی چادر چڑھاتے. ایمانداری سے بتاؤ، جب آپ 20 ہزار کی چادر چڑھاتے ہیں، آپ کے باہر نکلنے سے پہلے وہ چادر دکان پہ آتی ہے. بے شک حق ہے. جب تمہیں معلوم ہے کہ میرا 20 ہزار پورا پانی میں ڈوب رہا ہے، کیا سرکار غریب نواز چادر کے بھوکے؟ وہاں 2 منٹ میں چادر اوپر تک چلی جاتی ہے. کیوں تم مجاوروں کی جیب پر ہے، جبکہ وہاں کے اکثر مجاور شیعہ، اجمیر شریف کے اکثر مجاور اتنے بڑے حرام الدہر شیعہ ہے، خبیث. آپ سلام پڑھو اعلیٰ حضرت کا، مصطفیٰ جان رحمت آپ کو بھگا دے گے اندر. اتنے بڑے دشمن صحابہ ہیں، ان حرام خوروں کی تم جیبیں بھرتے ہو. داڑھی کٹتے جنہوں نے مزار کو تجارت کا اڈا بنا دیا. اجمیر کے عرس میں ہزاروں لڑکیوں کو پارسل کرتے ہیں یہ لوگ اتنے سیاہ باطن ہے. میں نے تو سنا ہے کہ اجمیر کے مجاور مرتے تو رات میں دفن کرتے، ان کا منہ تک نہیں دکھاتے. ہاں، ان کی شکلیں بگڑ جاتی. جو رات دن اس مزار سے تجارت کر رہے ہیں، جو لوگوں کی غریبوں کا پیٹ مار کر اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. کتنے غریب مسلمان خدا کی قسم کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بیماری کے لیے پیسہ نہیں ہے، مر رہے. تم
مجاوروں کی، پیروں کی، حضرتوں کی خدمت کر رہے ہو، کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر یہ کون کرے گا؟ حقیقت میں جس کا حق ہے اسے ادا کرو گے، تمہارا بھلا ہوگا، تمہاری دین و دنیا سدھر جائے گی۔ نبی فرماتے اطعموا الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصائم الرمضان، رمضان کے روزے رکھنے والا، حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا، جو زبان کی حفاظت کرے، اور تالی القرآن، قرآن کا پڑھنے والا۔ اب مجھے بتاؤ جو پیر نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اور پیر تو پیر، آج کل بابا گری کا دھندا بھی بڑا سامنے، ارے باپ رے باپ، بمبئی کے لوکل ٹرینوں میں جو ہے 7 سمندر پار کی محبوبہ آ جائیں گی، کیسا آتی ہے؟ تعمیر لیتے ہی بادشاہ بن جائیں گے، بادشاہی کا دور چل رہا، کائے کو بے وقوفوں جیسی باتیں کرتے ہیں یار۔ اچھا بارش ہو رہی، کون سا بابا جا کے روکتا بارش کو؟ روکتا کوئی بابا؟ آپ اپنی سیفٹی کے لیے چھتری لگا لو، اتنا ہو سکتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، کسی اچھے عالم دین کے پاس جائیے، وہ آپ کو تعویذ دے گا، گارنٹی نہیں لے گا، کیونکہ اللہ چاہ رہا ہے اگر نہیں دینا تو کوئی مولانا کچھ نہیں کرے۔ اور اس بابا گری کے دھندے میں اتنا لوٹتے ہیں، اولاد باندھ دیے تیری، خدا کی قسم یہ کفری عقیدہ ہے۔ اولاد کوئی باندھ سکتا؟ اولاد کا دینا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے قدرت، ایسا کون سا بابا ہے جو اللہ کے قلم کو پکڑ لیتا؟ تیری روزی باندھ دی، جادو ٹونا ہے تیرے اوپر۔ بابا یہ نہیں بولے گا تو نماز نہیں پڑھتا، حق ادا نہیں کرتا، ماں باپ کی نہیں سنتا، بیوی بچوں کی حق ادا نہیں کرتا، داڑھی نہیں رکھتا، اس لیے پریشان ہے۔ ایسا بولے گا کہ تم کا اس کو پیسہ دیتے، جا کے عمل نہیں کرتے۔ وہ جب تک جادو ہے، ٹونا ہے، سفلی ہے، فلاں ہے، ٹھماکا ہے نہیں بولے گا، اس کی دکان نہیں چلے گی۔ باباؤں نے دین کا مذاق بنا کر رکھا۔ خدا کی قسم میں دعا تعویذ کا انکار نہیں کرتا، ارے بے شک قرآن کریم کی آیات، احادیث کریمہ، میں بھی دعا تعویذ کرتا ہوں، میرے پاس بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جس کو ہم تعویذ دیں اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ ایسی کون سی تعویذ ہے کہ آدمی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزہ بھی نہیں رکھ رہا، کسی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا، اور راتوں رات اس کی بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی؟ یہ سب ڈھونگ ڈھکورچے، اس سے بچو۔ جنگلی باباؤں سے، نقلی باباؤں سے بچو، جنہوں نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 4 باتیں سن لو، میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ 4 باتیں جس میں ہے وہ کامل پیر ہے۔ نمبر 1، پکا سنی ہونا، ٹناٹن، ایک دم کھناکھن، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، وداؤٹ اینی ہاؤ، ایک دم پکا سنی۔ ذرا بھی پلپلا ہے تو انہیں پیر نہیں ہوتا، سمجھے؟ سیکنڈ نمبر پہ اتنا علم ہو، عالم ہونا کوئی ضروری نہیں، اتنا علم ہو کہ اپنے مسائل کتاب و سنت سے نکال سکے۔ تھرڈ نمبر پہ اس کا سلسلہ سرکار تک ملنا چاہیے، اس سے لے کے سرکار تک۔ اب حضرت وارث پاک نے کسی کو خلافت دی ہے؟ نہیں دی، لوگ ان کے سلسلے میں مرید کر رہے ہوتا۔ حضرت زندہ شاہ مدار بدی الدین رحمت اللہ علیہ نے کسی کو خلافت نہیں دی، ان کے سلسلے میں لوگ مرید کر رہے، کہاں سے ہوتے مرید؟ سلسلہ سرکار تک ملنا ضروری ہے، سمجھے؟ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات متبع سنت ہونا۔ کیا ہونا؟ سنت کا اتباع کرتا ہوں، سنت کی پیروی کرتا ہوں۔ سنت کیسی؟ یہاں تک ٹھوس ٹھوس کے کھانا، رات بھر گاڑی پنکچر کرنا اور نماز کعبے میں پڑھنا، ایسی سنت؟ کون سی سنت؟ سنت سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے طریقے مرضیہ اور صحابہ کرام کے طریقے متواترہ پر عمل کرتا ہو۔ یہ 4 باتیں جس میں ہوں گی، بے شک وہ پیر ہے، آپ اس سے بیعت ہو جاؤ۔ اور عموماً یہ باتیں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے چاہنے والوں میں ہی پائی جاتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ حیدرآباد میں نا رضا خاں بولتے ہیں، اور ایسے بولتے ہیں کہ معاذ اللہ۔ اب بتائیے آدھا گھنٹہ اور تقریر کروں، مطلب 2.5 گھنٹہ تقریر کروں؟ یار میری صحت کا بھی خیال کرو، مجھے کل بھی تقریر کرنی ہے، روزانہ تقریر کرنی، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہاں تھا ایک بار سبحان اللہ زور سے کہو، اور زور سے کہیں گے تو اور آئے گی اندر، اور زور سے
बात है। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। सुभान। सुनिए, ये चार बातें उमूमन सिलसिला रज़विया के बुजुर्गों में और भी सलासिल में, लेकिन नक्शबंदी सिलसिला दक्कन में आके थोड़ा गड़बड़ा गया। चिश्ती सिलसिले में आखिर में कुछ पीरों में बिदअतों का रिवाज हो गया। महफिल समा को सुनते हैं खुल्लम खुल्ला और इसे गरीब नवाज सरकार की तरफ मंसूब करते हैं। खबरदार खबरदार, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब औलिया और हुजूर गरीब नवाज से आज जो कव्वालियां हो रही, ये कव्वाली साबित नहीं है। आज जो और कव्वाली में आज क्या कुछ नहीं होता। आपकी कव्वाली मालूम है? एक कव्वाली जो बहुत मशहूर है, जरा शराफत से रहो। आजकल जो कव्वालियां हो रही है, अब बेचारों की जितनी कैपेसिटी थी उतना बैठ गए। सोचे थे आखिरी में कुछ तबर्रुक मिलेगा, कुछ मिल ही नहीं रहा है, या तो बहुत देर तक चल रहा है। और देखो कैसा उछल रहा उनके। माँ बाप को तंग कर रहा था तो बोले जा मौलाना के पास। अब मौलाना तो खत्म ही नहीं कर रहे, क्या करना, चल जाना वापस। सुनिए, आजकल कव्वाली में क्या कुछ नहीं होता। एक मशहूर कव्वाली है, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। उसमें बाद कलिमात ऐसे हैं जो सरीह तौर पर कुफ्र है। मसलन हजरत ही की सूरत को गए देखने हजरत ही से हजरत का तमाशा शबे मेराज। इस जुमले का मतलब भी मालूम है आप? उसने खालिक व मखलूक को एक बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा के दर्जे पर बिठा दिया। सुन्नी मुसलमानों, आप लोग कव्वाली सुनते हैं, कव्वाली से बुजुर्गों ने दीन सीखा है। सरकार मुफ्ती आजम के दौर में एक पिक्चर आई हज के मुताल्लिक, तो लोगों ने पूछा हुजूर वो पिक्चर देखें हम ताकि हमको हज का तरीका मालूम पड़े। हजरत ने बड़े अफसोस का इजहार करते हुए फरमाया, क्या आप मुसलमान अपना दीन सिनेमा हॉल में सीखेंगे? कितने अफसोस की बात। आज कव्वाल हमें तस्लीम आरिफ, उनके कव्वाली में किस्से होते, वाकयात होते, वो सुन सुन के औरतें दीन सीखती है। इस किस्म के कव्वाल क्या कुछ नहीं बोलते। दमादम मस्त कलंदर, अली का कितना नंबर? अरे यार मालूम है यार, नहीं कव्वाल कितना बोलता? पहला होता, पहला नंबर नहीं। ये तो शियों का अकीदा है। पहला नंबर अबू बकर का, दूसरा नंबर उमर का, तीसरा उस्मान का, चौथा अली का नंबर। बेशक। और ऐसी कव्वाली, ये गुत्थी आलिमों से सुलझ नहीं सकती, माशाअल्लाह, और तेरे से बड़ी सुलझ रही। दारू पी के कव्वाली पढ़ रहा है, दारू पी के कव्वाली पढ़ रहा है, और कव्वाली के नजराने तय कर रहा, पूरी हिजड़ों की टीम को लेकर आ रहा वो तालियां बजाने के लिए। ऐसी कव्वाली सुनते थे बुजुर्गाने दी। खुदा की कसम दीन का मजाक बनाकर रखा, तादियादारी के नाम पर, मजारात के नाम पर। अब मजारे तो पूछो मत, पीर साहब है मर गए, मजार बनना जरूरी। अरे डालो ना कब्रस्तान में, सबकी मजार बनाते, हर पीर की मजार बनाते। मैं तो समझता हूँ 100 साल के बाद शायद रहने को जगह ना मिले लोगों की। क्यों हर पीर की मजार बना? अरे ठीक है पीर है, लेकिन कोई जरूरी है उसकी मजार बनाई जाए? उसके बेटे की भी मजार बनना जरूरी, उसकी पोते की भी मजार बनना जरूरी। और मजारों के नाम पर जो कुछ हो रहा, औरतों की हाजिरी, मर्दों की हाजिरी, धूम धड़का, और फिर तो हाजिरी भी आती लोगों को आंग में। गौस पाक आते, किसके आंग में आते? जिसको पेशाब का ढेला लेना नहीं आता, उसके आंग में कौन आते? ऐसा सुई चुबा उसको देखो आते कि शैतान आता है। बताओ क्या तमाशा बना कर रखा। और फिर आलिमों को समझ में नहीं आती। अरे खुदा के बंदे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब उतारी गई जिसका नाम कुरान है, जो उलमा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। उस किताब में पूरा मुकम्मल दीन लिखा है, और उस किताब की तशरीह हदीसों के अंदर है। नबी ने अपने अमल से, अक़वाल से करके बता दी। तो नबी ने कुरान हदीस लाए, उससे हमने शरीयत समझी। अब ये जो तुम तरीक़त बताते हो, ये कहाँ से है, जरा हमको भी तो समझाओ। कान खोल के सुन लो, मैं आपको बताता हूँ तरीक़त क्या है। आपको तरीक़त कुछ और चीज बताकर धोखा देते हैं, तरीक़त कोई और चीज बताकर धोखा देते हैं। शरीयत ये है कि आदमी भूख लगने के बाद 2 रोटी खाने से भूख मिटती ना आपकी? 2 रोटी खाओ, शरीयत मना नहीं करती। हाँ, कुछ लोग क्या करते, जैसे चपाती रहती ना रोटी गेहूं की, साइड के किनारे काटते, बीच में का नरम नरम खाते। ये मस्ती है, ये मस्ती चलना, ऐसा नहीं करना। शरीयत इससे मना करती। 2 रोटी की भूख है 2 रोटी खाओ, लेकिन तरीक़त क्या बोलती मालूम है? 2 रोटी की भूख है तो कितनी खाओ? ये है तरीक़त।
शरीयत क्या है? 5 वक्त नमाज फर्ज पढ़ना। तरीक़त क्या है? तहज्जुद भी पढ़ना, इशराक भी पढ़ना, चाश्त भी पढ़ना, अव्वाबीन भी पढ़ना, तमाम नमाजें पढ़ना। यह है तरीक़त। फिर तरीक़त पे जो आदमी चलता है ना, उसको हकीकत में अल्लाह की मारफत यानी दीदार नसीब होता है। वो अपने रब के जलवों में नहाने लगता है। फिर ऐसा शख्स मकामे विलायत को तय करते करते फिर ये दुनिया से जान छुड़ाता। मगर हमारे यहाँ तरीक़त उल्टी हो गई। बड़े बड़े अमीरों के मुरीदों के यहाँ जाना, रंग बिरंगी कपड़े पहनना, नमाजों का तर्क करना, सुन्नत का तर्क करना, और इसका नाम तरीक़त रख देना। अजान हो रही है, अजान की तौहीन करना, नमाज पढ़ने जाना नहीं, मौलवियों से जंग करना, सिलसिले के नाम पे खुराफात करना, रातिब खेलना, यहाँ से घुसाना, यहाँ से निकालना, सिलसिले रिफाइया में, ये सारी चीजें खुराफात, और इसका नाम रख दिया लोगों ने तरीक़त। तरीक़त इसका नाम नहीं है। जब हकीकी तरीक़त आदमी के अंदर आती है तो वो दुनिया से बेजार होने लगता है, वो अपने नफ्स को कुचलता है। शेख बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा, अल्लाह और बंदे में कितना फर्क है? आपने फरमाया 2 कदम का। कितने कदम का? फरमाया 1 कदम अपनी ख्वाहिशात पर रख लो, दूसरा कदम अल्लाह के पास। ख्वाहिशात पर रख लो 1 कदम। एक अल्लाह के वली थे, रास्ते से गुजर रहे थे। अब उनको एक ककड़ियों का खेत दिखा, तो उनके दिल ने चाहा मैं ककड़ियां खाऊं। तो बोले अच्छा ककड़ी खाएगा? उसने कहा जी हुजूर खाऊंगा। बोले आज वो ककड़ी खिलाता हूं। दिल से उन्होंने फरमाया तुझे ककड़ी खिलाता। गए खेत में, एक थैला लिया, ककड़ी तोड़ी, तो सामने जो रखन के लिए बैठा हुआ था उसने देखा बुढ़े आदमी है, तोड़ रहे, तोड़ने दो। लेकिन अब तोड़ तोड़ के भरते ही जा रहे, पूरा थैला भर लिया। उसको आ गया गुस्सा था, कम बखत ने पूरा खेती मेरा खाली कर दिया। आके इतना मारा कि बदन की बोटी बोटी दर्द करने लगी। क्या फरमाया ककड़ी खाएगा? बोले नहीं खाऊंगा। क्या बात, खाता ककड़ी? क्या बात, क्या इलाज करते हैं यार? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, उल्टी चाल चल। तस्वीर लेते हमारे पीर साहब, अबे तस्वीरें यार नहीं, तसव्वुरे यार है। तस्वीर कहां से आ गई इस्लाम में? तस्वीर नहीं है इस्लाम में, तसव्वुर है। ये लोग पीर साहब को टीवी में देखते हैं, हम लोग तसव्वुर में देखते हैं। बहरहाल ये ऐसे उल्टे काम करते हैं, नफ्स को कुचलते हैं। अब एक अल्लाह की वली बाजार से गुजर रहे थे, तो एक हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियां थी। तो दिल ने चाहा कि काश गरम गरम जलेबी मिलती। पूछा खाएगा? बोले जी जी हुजूर खाऊंगा। आपने ले लिया पूरा थाल, बैठ गए, खाते रहे, इतना खाए, इतनी उल्टी हुई। 8 दिन तक तबीयत खराब थी। 8 दिन के बाद जब हलवाई की दुकान से गुजरे तो दिल कह रहा हुजूर जरा दूसरी गली से गुजरो। मीठा खाने से ही दिल उठ गया। ऐसा इलाज करते हैं अल्लाह वाले। अरे ऐसों को ढूंढो ना यार, कौन मना करता? आप ऐसों से दुनिया खाली नहीं हुई, लेकिन ऐसे लोग थोड़ी तुमको जल्दी मिलेंगे। रंग बिरंगी शाह मिलेंगे, जाने मन जन्नती पीर साहब है कर्नाटक में, एक कहा था मौलाना आंध्रा में, खुद की मजार बना दिया, खिलाफत मिल गई, अपना जनाजा पढ़वा लिया, 16 साल से उर्स भी करता। वहां के लोग आइयो हमारे मुर्शद बहुत पहुंची सो, चलती तुम्हें जियारत को, तुम्हें जियारत नहीं करती सो, मुझे बोल रहे कर्नाटक की जुबान में, हमारे मुर्शद बहुत पहुंचे हुए, आप उनकी जियारत नहीं करते। फिर दूसरे को क्या बोलता हूँ, अयो मुर्शद नहीं हमने नमाज माफ करी सो, कितने बड़े मुर्शद नहीं हमने रोजा माफ करी सो, रोजा रखना के तो कितना वाखर है। तुम्हें मुर्शद की तो इन कर दी मौलाना। ये अल्लाह वाले हैं। देखो इंसान का जो जिस्म है ना, ये तमाम इंसान के पार्ट्स एक चीज के कैद में है, और वो है दिल। अल्लाह वाले किसकी इस्लाह करते हैं? दिल की इस्लाह की। ये बादशाह है, इसके 4 वजीर है। कितने? 4 वजीर। इमाम गजाली ने लिखा है दिल बादशाह, उसके 4 वजीर है। उसको मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपकी मुकद्दस चश्माने मुबारक ने देखा कि सामने कड़क कड़क 100 का नोट पड़ा हुआ है। देखना किसका काम है? आंख। ये आंख का पहला वजीर है। अंदर है तो क्या बोलता? कागज है। रस्सी आई तो बोलता साफ है तो चिल्लाता रस्सी है करके। आपकी आंखों ने देखा 100 का नोट है, तो आपकी जुबान ने कहा 100 का नोट है। कानों ने सुना, दिमाग ने सोचा खिलौना बैंक का है कि रिजर्व बैंक का है। नहीं, कुछ बच्चे क्या करते, अरे मेरे साथ किए, मेरे गली में एक धागे को नोट को धागा बांधे छोड़ दिए।
अब मैं आ रहा था सामने से, मैंने कहा 100 की नोट है, हालांकि मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैंने कहा उठा के किसी गरीब को, मैं जैसी उठाने गया वैसी वो खींच लिए धागा। बच्चे बड़े बदमाशी करते हैं। तब आपके दिमाग में सोचा ओहो 100 का नोट है, रिजर्व बैंक का है, हो गया ना। आंख ने देखा, जबान ने कहा, कान ने सोचा, दिमाग ने फैसला की। अब ये चारों ने अपने बादशाह के पास कहा सरकार क्या हुक्म है, उठा ले। सरकार क्या बोले, उठा ले। क्या बात है। हमारे बम्बई के लोग क्या करते मालूम है, भाई साहब के पीछे देखते, कोई देख रहा कि नहीं, रुमाल डालते ना ऐसा ऐसे। हैदराबाद के लोग कैसा करते, ऐसा ही करते, ऐसा ही। नहीं मैं बोला जन्नती लोग शायद नहीं करते होंगे। आपको मालूम है हशमत पेट के लोग पखाना नहीं करते। उस दिन मैंने पूछा पखाना बोले तो क्या बोले, हमको नहीं मालूम। हशमत पेट में सब जन्नती रहते हैं। जन्नतियों को देखना तो कहाँ जाओगे, हशमत पेट में। उस दिन मैं पूछ रहा हूँ तकरीर में पखाना बोले क्या, लोग एक दूसरे को मुंह को देख रहे कि ये कौन सी नई बात बोल दी मौलाना ने। वैसे हशमत पेट के जन्नती लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बहरहाल अब दिल ने कहा उठा ले, तो आपने बड़े स्टाइल से रुमाल फेंक कर और ऐसा उठा लिया। ठीक है, अब आप रास्ते से जा रहे हैं, सामने भैंस का पावटा पड़ा हुआ है, गोबर, वो हमारे मराठवाड़े में पावटा बोलते हैं उसको। अब आपकी आंखों ने देखा, जुबान ने कहा, कान ने सुना, दिमाग ने सोचा, दिल क्या बोलता, बच के जा। ये दिल है जो आदमी को पूरे जिस्म पर हुकूमत करता। अल्लाह वाले सबसे पहले क्या करते, दिल की इस्लाह। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर कभी आप लोग गए, उनकी एक किताब है आदाबुल मुरीदीन, उसको पढ़ो, जबरदस्त किताब है। आज भी जब आप उनकी मजार पे जाएंगे ना, नीचे देखना हुजरे बने हुए, रूम बने हुए। जब उनके पास कोई मुरीद होने आता तो आप सबसे पहले उसको हुजरे में भेजते, जा 40 दिन का चिल्ला कर। वो चिल्ला ऐसा नहीं था ये तबलीगियों के जैसा चिल्ला, वो चिल्ला अलग होता था। एक एहराम की हालत में सिर्फ नमाज पंजगाना। अब 40 दिन तक आदमी गीबत नहीं करता, नमाज बा जमात तकबीर उला के साथ पढ़ता। नबी फरमाते जिसने तकबीर उला के साथ 40 दिन तक नमाज पढ़ी उसे 2 बरातें हैं, एक निफाक से और एक जहन्नम से आजादी, 2 खुशखबरियां हैं। उसने तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ी, ये नमाज की फजीलत है। बहरहाल 40 दिन के बाद हजरत देखते कुछ लायक है फायक है तो सिलसिले में दाखिल फरमाते। अब ऐसा नहीं है, रुमाल फेंक दिए सब पकड़ लो, और जिसको रुमाल नहीं मिल रहा वो दूसरे के कांधे पे हो रहा। बाद में सोचता है यार मैं इसका तो मुरीद नहीं हुआ, मैंने इसके कांधे पे हाथ रखा। क्यों तमाशा बना रहे हो? पीर देखो देखो कैसा लोग बोलते, पानी पियो छान के, और पीर कैसा करो जान के। और एक बात और बोलते, पीर से पर्दा नहीं बोलते ना। उसका मतलब ये थोड़ी कि औरतें बेपर्दा है, उसका मतलब ये कि पीर के सामने अपने गुनाह खोल खोल कर बयान करो। पीर रूहानी तबीब होता है जो आपके गुनाहों का इलाज करता है, जो आपको राहे हक की तरफ गामजन करता। पीर का मतलब होता है गाइड करने वाला, आपको रास्ता दिखाने वाला, शरीयत पर चलाने वाला, आपका मुहासबा करने वाला, एहतिसाब करने वाला, जब आप गलत काम कर रहे हो तो रोकने वाला। तो जो पीरी मुरीदी का माना पहले जमाने में था उसका बिल्कुल उल्टा आज के जमाने में हो गया, बहुत गड़बड़ी हो गई। इसलिए जरूरी है अच्छा पीर करो। आज जो सुलह कुल्लियत हैदराबाद की सरजमीन पर फैली, इस सरजमीन पर इस्लाम हमारे बुजुर्गों ने लाया है। वहाबी देवबंदियों का नापाक वजूद हैदराबाद में 150 साल से ऊपर नहीं होगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। और ये अहले हदीस तो बहुत बहुत हुआ होगा। वो कौन है इमरान ब्रदर, कौन है वो, कौन है, कोई है वो, छोड़ो। तो ये मैक्सिमम 100 ईयर से ऊपर नहीं होंगे। हमारे बुजुर्गों ने इस सरजमीन पर दीन का काम किया। आज हमारी सुन्नियत टुकड़ों में बटी जा रही है, सुन्नी आपस में दस्तों गिरेबा है, वहाबियत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी हैदराबाद की सरजमीन पर वहाबियों ने बेमिसाल इज्तिमा किया। तुम्हारा दिल नहीं जला? खुदा की कसम मेरा कितना दिल जलता है जब वहाबी देवबंदियों की तादाद को मैं बढ़ता हुआ देखता हूँ। कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। आप इस बात को दिल पे बिठा ले कि मेरी जमात, जमात हक का अहले सुन्नत व जमात, हर जमात का एक बानी मुबानी है, लेकिन अहले सुन्नत का बानी कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इस जमात के बारे में तुम नहीं कह सकते कि इसे फलाने ने बनाया। आज जो लोग कहते हैं उर्स, न्याज, फातिहा, दुरूद, सलाम, चादर, गागर, संदल, बंडल, मीलाद, झंडे, जुलूस,
जब से मौलाना अहमद रजा खान बरेली में आए। बेवकूफो, मौलाना अहमद रजा खान हिंदुस्तान में आए, तशरीफ ले गए, मैक्सिमम 170 साल हो रहे, मैक्सिमम 170 साल हो रहे। गरीब नवाज का उर्स 802 सालों से हिंदुस्तान में होता आ रहा है। आप पाकिस्तान चले जाइए, हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमहुल्लाह का उर्स 1000 साल से ऊपर होता आ रहा है। ये मुगलिया दौर में बनी हुई यूसुफैन की मज़ारात, ये तमाम अल्लाह वालों की मज़ारें आप देख लीजिए, ये किस दौर में बनी है। मुगल अंपायर सब के सब सुन्नी थे, सल्जूकी इक़्तिदार सब के सब सुन्नी था, तैमूरी इक़्तिदार सब के सब सुन्नी थे। सलातीने, जितने सलातीन हिंदुस्तान में आए सब सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हनफीयुल मज़हब थे। और उसी अहले सुन्नत की पहचान इस जमाने में मसलके आला हजरत से होती है। आला हजरत ने कोई नया मजहब इजाद नहीं किया है, आला हजरत ने इसकी पासबानी की है, तहफ़्फ़ुज़ किया है। लिहाजा मजहब अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत के नाम से पहचाना जाता है। ये वहाबी देवबंदी जिनका नापाक वजूद हिंदुस्तान में अंग्रेजों के मनहूस कदम पड़ने के बाद है, ये लोग आज हमारे लोगों को लेकर जा रहे हैं। और कितने सुन्नी वहाबी बन गए, नहीं बने? एक वहाबी मुझे जहाज में मिला, बोलने लगा, मौलाना सही सही बताओ, बोले कितने सुन्नी तबलीगी बन गए। बोले कोई तबलीगी सुन्नी बना क्या? तो मैंने कहा नहीं बना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो बहुत खुश हो गया, वो समझा मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। मैंने कहा एक बात बता, बिरयानी खाए तो क्या बनता है? हसमत पेट वाले मत बोलना, वो बेचारों को मालूम ही नहीं है। बिरयानी खाए तो क्या बनता है जी? पखाना बनता ना। अच्छा, पखाना बिरयानी बनता। तो बिरयानी से पखाना, क्या बात है, क्या बात, बिरयानी से पखाना बन गया। वो पखाना कैसा बिरयानी बनता? सिर में का बाल, आप मुंह में जाओ कि मुंह में जाओ, क्या फर्क पड़ता? उन्हें इस लायक ही नहीं था वो सुन्नियत में रहेगा। जितने है उतने रहो और जबरदस्ती का निकालो मत, फतवे लगा लगा कर। आजकल मौलाना से ज्यादा तो पब्लिक फतवे लगा सुना कुल्ली, अरे पाप हो गया, निकल गया। ऐसे कैसे निकलते? इतना हल्का इस्लाम है। जो भी बात कहो उलमा से पूछ पछा कर कहो, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कहो, इल्म सीखो। अब तुम चाहते हो कि दुरूद व सलाम की ये बहारें, सरकार दो आलम की जिक्र शरीफ, औलिया अल्लाह की बातें हमेशा चलती रहे। आज हम देख रहे हैं कि वो वहाबियत जो 150 साल पहले हैदराबाद में आई, इस्लाम 150 साल पहले नहीं आया, हैदराबाद में इस्लाम कम से कम 1000 साल पहले आया। लेकिन आज वहाबियत उतने 850 साल बाद आने के बावजूद हमसे ज्यादा बढ़ गए। ये लोग न बढ़े, इसके लिए कोशिशें करो, इसके लिए मदारिस का क़याम अमल में लाओ, तंजीमी शक्ल में कोई काम करो, मुत्तहिद होकर इज्तिमात प्रोग्रामात कराइए, महाफिल कराइए, लाइब्रेरी बनवाइए। एक लाइब्रेरी ऐसी हो जिसमें तमाम मकातिब फिक्र की किताबें होनी चाहिए, जो यंग बच्चे बहक रहे। देखो मेरे